और फैक्ट ये है कि he is right, and there are 2-3 things that come out of this. पहली बात तो ये है कि the moment he said, पहले तो गाली सुनाई प्यार से, डायलॉग गाली ही थी ना, और क्या था? मेजर गाली थी, तो जो राजश्री फिल्म में सुनाई नहीं देते. और actually that phone call did not last 15 minutes. It lasted 20 seconds. मतलब फोन रख दीजिए. Can you increase their volume? हाँ जी. Their volume. Their volume. हाँ, अब यहाँ से होगा. हाँ. So I called up Suraj ji and then I called him back. That conversation lasted. But what is important in all of this is, I was going through a very bad phase. I was going through a time where I had lost a lot of people. I was not in the right frame of mind. My mother was not well and all that. And he said, this is going to be, what was the thing you said? It is going to be the greatest history. I said, it is spiritual history. Because the experience I've had working with this man and the energy that he emanates from every word he says, how he says it, how he means it, the truthfulness with which he says it. You just stand next to him, you feel you're a better human being just by being in his presence. And I'm not saying this. People have said some wonderful things. Every morning, we come to the van and we chat. And I say to myself, and I thank you, Mr. K, for abusing. You can abuse 10 times more. You're a friend. Bolo, isme kya hai? Main stupid tha. But the fact is that only a great actor will be so large-hearted to invite an actor whom I hope he loves and respects. Otherwise, ठीक है, किसी को भी लेके आओ. No, he means well for other actors. He supports other actors. From Khosla, he supported me from that day. And most important, he did what was right for the film. And I would like to believe, if I say so myself. मेरे ज़हन में ये था कि सूरज की इच्छा है और ये इच्छा जरूर पूरी करना मेरा धर्म है. That's it. From now on, everything सूरज की इच्छा. खत्म हो. और मैं इसलिए नहीं कह रहा था कि मुझे लग रहा था कि ये एक्सपीरियंस से आप गुजरोगे, ये लाइफ लॉन्ग रहने वाला है. So you are right. From this moment, watching the trailer, the two of us are crying like two little school children sitting over there. That's what friendship is about. This is what a movie like this does for us. And I hope it does it for all of you and your families. I pray that all of you feel a cleansing feel in your bodies and your souls thanks to this film. Thank you so much, sir. Thank you so much. बच्चन साहब के लिए अगला सवाल है मेरे पास कि सर, there's this saying, a friend in need is a friend indeed. तो अभी आज के दौर में सर, what do you feel, ये कितना imply करता है और कितना ये चीजें change हो गई हैं इंडस्ट्री में भी और real life में भी? A friend should never be in need, I just believe, and if there is ever an occasion when there is need, I would like to step up and do the best I can for him. Right. So, do you feel, sir, is it true that Abhishek Bhai wanted you to do this film? Like, he was after your life, that you have to do Unchai, is what we've been told, sir? Yes. So, how did that happen, sir? Like, एक बार उन्होंने बोला और आपने कर लिया, or was it Suraj sir and of course Wholesome Entertainment जो राजश्री के साथ चलता है वो टैग था? What was it, sir? तो बेटा जब बाप की उम्र का हो जाता है यार, उसके नजदीक हो जाता है तो उसके जूते पहनना शुरू कर देता है. और एक बार बेटे ने बोल दिया तो उसकी बात मान ली हमने. सूरज सर, आप प्लीज बताइए, just to add to this question, कि how was your equation with of course Bachchan साहब, Kher साहब and Baman sir on shoot? Actually, I have to say that बहुत साल पहले मैं सर को स्क्रिप्ट सुनाने गया था, मैं प्रेम की दीवानी हूँ. तो मुझे अभी भी याद है, सर जो सुनते हैं ना, सर यही है बट आई कैन से, सर सुनते हैं अपलक. अपलक मीन्स ऐसे नजरें गाड़ के, एंड यू कैन नॉट फेस दैट गेज. इट्स नॉट ईजी, इट्स नॉट ईजी. तो फिर जब ये स्क्रिप्ट मैंने लिखी तो मैंने सर को मैसेज किया, तो सर ने मुझे, अभी भी मुझे याद है, वेडनेसडे था, 4 बजे का टाइम दिया था जूम पे, कोविड का टाइम. तो 2 एंजाइटी मेडिसिन लेकर के मैं बैठा. It's not easy to face, sir. Yes. But then, over the years, over the time that we spent on this movie, I can say that sir is the easiest actor to work with. He's the easiest actor.
समटाइम्स आई टेल सर दैट हम लोग तो इतने जूनियर हैं, हम अपने बोलते ये करना है, मेरा फीलिंग ये है, यू कैन सी थ्रू एवरी जूनियर, बट येट वाई डू यू हियर सो मच? बट दैट्स वाई सर इज सर. And I have to say that I, of course, enjoyed with Sir on the set, but I enjoyed more with him in his vanity van. Oh, okay. Because when you meet Sir in the vanity van, he tells you about poetry, he tells you about life, he tells about filmmaking, he teaches us, but on set he only listens. I think that is the greatness of Sir. And with Anupam Sir, he's been like a father figure. I'm just sharing. मैं सर से मिलने जा रहा था जनक फर्स्ट टाइम, स्क्रिप्ट सुनानी है, फिर मैं नर्वस, फिर मैंने अनुपम सर को फ़ोन किया तो अनुपम सर ने वहाँ से मुझे गणेश वंदना भेजी साथ में कि ये सुन के जाओ. सो फॉर मी ही इज़ बीन लाइक अ फादर. एंड बोमन सर हैज़ टॉट मी अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फिल्म मेकिंग विच इज़ रियली लिव्ड मी. यू रिमेंबर बोमन सर टोल्ड मी दैट सुबह उठता हूँ तो मेरा कैरेक्टर मुझे बोलता है कि क्या करना चाहिए. That has given me a different light because I have to get up and I have to ask the character and it goes correct rather than thinking this is the camera angle, this sells, nothing matters. So thank you, Boman sir. Thank you so much, sir, for sharing that. Sarika ma'am, this one's for you. Coming back, you know, to Rajshri परिवार एक बार फिर से वापसी हो रही है इस फिल्म के साथ और बहुत बखूबी सब कुछ काम किया है यहाँ. क्या बोलना चाहेंगी इस जर्नी के ऊपर और कितनी चीजें बदल गई हैं तब जब शुरुआत की थी और आज? चीज़ें बहुत बदल गई हैं मगर मुझे लगता है राजश्री नहीं बदली है. इट स्टिल हैज़ द सेम लव, द सेम फीलिंग ऑफ फैमिली. एक तरह से जो बोलते हैं ना घर वापसी है मेरी. एंड इट्स सो इंटरेस्टिंग. इसके 75th ईयर है और अभी भी वो जनरेशन टू जनरेशन नई. अब फिल्म दूसरे महीने शुरू हो रही है. दिस इज़ नॉट जस्ट समथिंग we can take lightly. This is not, you know, बोलते हैं कहीं पे कोई ऑफिस है जो चल रहा है 75 years से, कभी कुछ कर दिया कुछ. It's not like that. अभी भी आप जाएंगे ऑफिस में वही ऑफिस है, उतनी ही एक्टिविटी है, उतना ही पैशन है. That is something amazing. So that is beautiful. And personally I think मुझे लगता है हमारे करियर में फिल्में कुछ अच्छी नहीं होती हैं, कुछ अच्छी होती हैं, लेकिन कोई कोई फिल्म ऐसी होती है जो एक ब्लेसिंग की तरह फील होती है. और आप जब वो फिल्म शुरू करते हैं तो लगता नहीं है कि ये दिस विल टर्न इनटू दैट, बट दिस फिल्म इज़ लाइक दैट फॉर मी. बिकॉज टू बिगिन विद बहुत खुशी थी कि मैं राजश्री में वापस इतने सालों बाद आ रही हूँ. फिर काम शुरू हुआ, सूरज जी से मुलाकात हुई. एंड लेट मी जस्ट से दिस, आप लोगों ने इतनी खूबसूरती से बोला, आई कांट इम्प्रूव ऑन दैट. बट टू नो सूरज जी और उनके साथ काम करना, ये एक अलग ही एक्सपीरियंस है. अगर आप लोगों ने नहीं किया तो मुझे लगता है आप कभी समझ ही नहीं पाएंगे कितना खूबसूरत एक्सपीरियंस है. एंड हर लेवल पे एज अ डायरेक्टर, जैसे बमन जी ने कहा, ये मेरे करियर में कभी नहीं हुआ कि हर रोज़ डायरेक्टर आके 5 मिनट सुबह वैनिटी में you know, मुझे बताएं कि हम ये सीन करें, जबकि मेरे पास स्क्रिप्ट है, मैं रोज़ स्क्रिप्ट पढ़ रही हूँ. वो भी मुझे बोल सकते हैं. इवन अगर कोई सीन आधा रह गया है और वो कंप्लीट कर रहे हैं, वो आकर हमें बताते थे कि ये हो रहा है. फिर मैंने बहुत सोचा कि सूरज जी ऐसा क्यों करते हैं, यू नो, एवरी डे. आई थिंक समवेयर हम जब घर चले जाते हैं सब, अनुपम जी बन जाते हैं, नीना जी बन जाती हैं, बमन जी हो जाता है, सारिका बन. आई थिंक इट्स इमोशनल कंटिन्यूटी जो वो हमारी फिर से पकड़ लेते हैं सुबह के, कि अब आप माला हैं तो मैं आपसे एक बार फिर आपको ले आता हूँ. एंड दिस इज सो अमेजिंग. एंड ऑन द सेट सूरज जी इज ब्रिलियंट एज ए डायरेक्टर. 2-3 ऐसी जगहें थी जहाँ पर मुझे उनकी बहुत ज़रूरत थी, उनके सपोर्ट की एज ए डायरेक्टर. उनमें कोई ईगो नहीं है, उनका दिमाग ऐसा नहीं है लकीर होती ना पत्थर की लकीर. उन्होंने इतना मिलजुल के किया है, यू नो, उस वक्त काम की. अगर ऐसा उनका स्वभाव नहीं होता, मुझे लगता नहीं कि मैं कुछ सीन्स कर पाती जैसे मैंने किए हैं. एंड उसके लिए थैंक यू वेरी मच सूरज जी, बिकॉज विदाउट अ डायरेक्टर आई थिंक एक्टर्स कैन रियली नॉट डू मच. वी कैन नॉट राइज अबव अ बैड डायरेक्टर और अ बैड स्क्रिप्ट. सो थैंक यू वेरी मच.
And now Suraj ji as a person is so good. When he likes your shot, हम सब ने देखा है, correct? और जब उनको लगता है एकदम एक बच्चे की जो खुशी होती है, really आप अगर सेट पे होते तो आपको समझ आता मैं क्या बोलती हूँ, बहुत खुश हो जाते हैं. Of course आप लोगों ने वो वीडियो भी बनाया था, उनका याद है. So I think for me this is very interesting. जो कैरेक्टर है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है. So हर चीज़ का जगह पे बैठना जो था. And I just want to say one more thing, because I'm not on social media. Today I want to use this and thank you Anupam ji, thank you Baman ji, thank you Neena ji, and Kiran ji se bhi thank you kahiyega for the poster release. मैं हूँ नहीं social media में, I can't give back that love. But you know that. So thank you very much. And इतने अच्छे artist, मतलब you know, बच्चन सर के साथ मैंने पहले भी काम किया है, लेकिन हर बार जब मैं काम करती हूँ मुझे लगता है कि वो रिस्पेक्ट और एडमिरेशन शायद छोटा वर्ड है, रिस्पेक्ट का ही थोड़ा सा ज़्यादा अगर कर दें, इट्स अनबिलीवेबल एक्चुअली. यू कैन जस्ट वॉच हिम ऑन द सेट एंड इट इज़ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. एंड अनुपम जी, बमन जी, नीना जी, they are so wonderful as actors. We all know their talent. We all know how wonderful they are. They can only take the script 2 notches higher. So this has been putting all this together, such a blessing to be in this. And this is just as an actor. And I'm very happy when I do a good film. And I'm very, very happy. So thank you very much. Thank you so much, ma'am, for sharing all that with us. And what we are witnessing here is unbelievable, because emotions के इतना उतार चढ़ाव है यहाँ पर. नीना मैम would like to ask you कि वो जो chemistry दिख रही है बमन सर के साथ या पूरी टीम के साथ, that's unbelievable. क्या बोलना चाहेंगे? और you know, ऐसे events पे जिस तरह से यहाँ emotional हो रखे हैं हम सब, और अभी जब हमने वो ट्रेलर देखा, इस जर्नी को कैसे सम अप करेंगे आप? आज जो राजश्री परिवार के लोग यहाँ आए थे हमसे पहले, और जो प्रोड्यूसर्स भी साथ में आए थे, और जो बातचीत हुई, में तो आँख में आंसू आ गए. तो आज का दिन, इस वक्त जो मैं यहाँ हूँ, मुझे लगता है मैं कुछ नहीं कहना चाहती. जो भी कहूँगी छोटे मुँह बड़ी बात होगी. मैं सिर्फ सुनना चाहूँगी. थैंक यू. थैंक यू सो मच मैम. कुछ ना कहकर भी बहुत कुछ कह दिया आपने यहाँ पे. आई नो आप लोगों के बड़े सारे सवाल हैं जिनके जवाब मिलेंगे, लेकिन वन लास्ट क्वेश्चन टू मिस्टर अमिताभ बच्चन सर. एक आखिरी चीज, सूरज सर ने आपके बारे में इतना सब कुछ बताया हमें. हाउ डू यू सी योर एसोसिएशन विद हिम एंड ऑफ कोर्स राजश्री ओवर द डेकेड्स सर? क्या कहेंगे? सर ये मेरा पहला एसोसिएशन तो है नहीं. अपने शुरुआती जीवन में बहुत ही पहली कुछ फिल्मों में उनके साथ काम किया था, और केवल मैं ही नहीं, मेरे परिवार के 2 और सदस्य जिन्होंने राजश्री के साथ काम किया है. जया ने काम किया है, अभिषेक ने काम किया है, और उन सब से जिस दिन भी मैं काम करता था ऊंचाई पे, तो रोज़ जब शाम को आते थे तो बस बधाई के पुल और तारीफों के पुल जो है वो बांधते थे राजश्री के बारे में, राजश्री प्रोडक्शंस के बारे में. और जब मैं वापस काम पे जाता था तो मैं समझ जाता था कि जो कुछ भी उन्होंने कहा वो बिल्कुल सही है. और ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि सूरज जी ने चुना, मुझे इस फिल्म में काम करने के लिए अवसर दिया, कि इतने बड़े दिग्गजों के साथ मुझे खड़ा कर दिया है. और मैं ऐसा मानता हूँ कि ऐसे अवसर जो हैं हमारी उम्र में आकर के बहुत कम मिलते हैं, लेकिन मिल रहे हैं. तो राजश्री प्रोडक्शंस को मैं धन्यवाद दूंगा, और हमारे सह कलाकारों को कि उन्होंने हमारा साथ दिया. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का. धन्यवाद आपको सर हमारे साथ जुड़ने के लिए. एंड मुझे पता है आपको जाना है, लेकिन उससे पहले सर एक फोटो आप ऐसा वर्चुअली कर ही लेते हैं, मुझे लगता है ना सर के साथ भी? जी होता है. ऐसे कैसे जाने देंगे ना? तो मैं भी खड़ा हो जाऊं क्या? नहीं नहीं सर. Now that's $1 million picture, ladies and gentlemen.
स्माइल्स हमने बड़ी देखी है. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, sir, for being here with us. जी. जी बिल्कुल आधुनिकता. Alright, so यहाँ पे अब मैं आप लोगों के सवाल लेने वाला हूँ. कहाँ से शुरुआत कर रहे हैं? जी. यहाँ से. सर मैं आ रहा हूँ आपके पास भी. Can we hand over the mic? Thank you so much, sir, for being here with us. एक बार जोरदार तालियां हो जाएं अमिताभ बच्चन साहब के लिए, of course. बहुत धन्यवाद. जी. हेलो हेलो टेस्टिंग माइक टेस्टिंग चेक चेक ऑडियो चेक चेक 1 2. सर you're killing it, sir. सर आज क्या खा के आए आप? पराठे खाया हूँ. अच्छा, लगता है. अच्छा सूरज सर, आपसे सवाल है. एक वक्त था सिनेमा में 50 साल के बाद आर्टिस्ट लगभग रिटायर्ड हो जाता था. उनको बड़ी मुश्किल से बाप दादा चाचा का रोल मिलता था. बच्चन साहब एक ऐसे व्यक्तित्व है जिन्होंने ये पूरा सिनारियो ही बदल डाला. अब भी फिल्म बनती है तो उनको सेंटर कैरेक्टर में ध्यान में रखकर फिल्में बनती है. क्या टेक है इसके ऊपर, आपकी क्या रिएक्शन है सर? सब ये तो उनके, आप कितना भी पढ़ लें पर उनके साथ काम करके ही पता चलता है कि क्यों वो ऐसे हैं. और क्यों जो आप कह रहे हैं वो एकदम सत्य है. बिकॉज आज भी पूरा डायलॉग रट के आते हैं, कंप्लीट 2-2 पेज का डायलॉग. एंड एक एक डांस मोमेंट कभी कभी मुझे बोले हैं वो शोल्डर दुख रहा है ये, बट फिर भी प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस. और एनर्जी जो सेट पे कंसंट्रेशन, वो हर डायरेक्टर को फोर्स करता है कि उनको इक्वल कर सके. सो आई थिंक वन ऑफ काइंड. जो एक वर्ड है जो हम लोग कई बार यूज़ करते, चलेगा, ये शॉर्ट चल जाएगा, ये ड्रेस चल जाएगी, पर वो चलेगा कभी यूज़ करते नहीं वो. सूरज जी, मैं खड़े होकर आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि इतनी अच्छी, इतनी डिफरेंट फिल्म आप लेकर आए हैं. सबसे पहले तो उसके लिए बधाई. आप ही के जो प्रोडक्शन हाउस की एक फिल्म आई थी दोस्ती, शायद हम लोगों का जन्म भी नहीं हुआ था, उस ज़माने की फिल्म है, और उस फिल्म को बहुत सराहा गया था. लेकिन आपने दोस्ती को जिस ऊंचाइयों तक इस फिल्म में पहुंचाया है, उसमें देख रहे हैं कि इन लोगों के साथ जो शूटिंग है उसमें आपको डिफ़िकल्टी ज़रूर आई होगी, लेकिन स्क्रिप्ट लेवल पर कितना चैलेंजिंग था पूरी फिल्म को उस सांचे में ढालना? आई थिंक डायरेक्टर के लिए ना वो जब जो उपज है, जो सॉइल है, वो जब जहाँ उस पर छींटे पड़ने लगते हैं ना, फिर वो डिफ़िकल्टी रहती नहीं है. तो कोविड में अभिषेक यहाँ हैं मेरे साथ, मेरे को राइटर, तो 3-4 महीने में हमने लिख दिए. बट लिखते समय ना सबसे बड़ा मेरे पास स्ट्रेंथ ये थी कि मैं बंधना नहीं चाहता था इस बार. नहीं तो हर बार आई बीन फॉर्चुनेट कि मेरी पहली पिक्चर सक्सेस रही, तो कि इतना बड़ा गाना चाहिए, इतना बड़ा सेट चाहिए, इतने डांसर्स चाहिए, कोमल जी यहाँ बैठे, इतना फर्स्ट डे चाहिए. मैं इस बार मैंने उस सूरत में ये फिल्म बनाई. कोविड है, सब लोग बोल रहे हैं कि बिजनेस नहीं, अच्छा नहीं. मैंने कहा जब अच्छा नहीं है तो वो कर लो जो मन करता है. तो बहुत आसान से ये स्क्रिप्ट हमने लिखी और लिखता गया. ये नहीं सोचा कि कितना करेगा, कितना बिजनेस होगी, बस जो मन में है वो बना दिया इस बार. हेलो. You know, this is not a question, but just an observation. ट्रेलर देख के स्क्रिप्ट वगैरह की आइडिया आ जाती है, लेकिन the underlying thing that came across through your trailer is conviction. Absolute, the highest level of conviction मैं कहूँगा. In fact, I just tweeted, conviction gets redefined with this. ऐसे starcast के साथ इस प्रकार की making, I think hats off to all of you. Now the question is, every artist must have been convinced आपके conviction से. सबसे मुश्किल किसको convince करना था आपके लिए? उस लेवल का conviction जो आप में था और आपके राइटर अभिषेक जी में था, उस लेवल का conviction हासिल करना या take together with you, वो किस में सबसे difficulty आई नहीं होगी, लेकिन that 1% more than the others.
कोमल जी, कन्विक्शन कभी honestly speaking, it was everyone believed in me, so then I worked harder. मेरे ताऊ जी यहाँ बैठे, फ्रॉम डे वन मैंने जब सुना है कि ऐसे मैं एल्डर्स के साथ पिक्चर बनाना चाहता हूँ ये कहानी, तो उन्होंने इमीडिएटली कहा कि बनाओ जो बनाना है. देयर इज़ नो हीरोइन, देयर इज़ नो शिफॉन साड़ी, देयर आर नो सॉन्ग्स. इरशाद जी बैठे, उन्होंने मेरे प्रेम रतन कोई, मैंने उनको बोला गाना, मैंने कहा इरशाद जी कोई गाना ही नहीं है, रोमांटिक गाना ही नहीं है, क्या करें? तो उन्होंने कहा ये रोमांस अलग किस्म का है, ये पहाड़ों का रोमांस है, ये नेचर का रोमांस है तुम्हारा. तो कन्विक्शन तब नहीं हो, बट अब जब पिक्चर कंप्लीट हो गई ना कोमल, जब मैं यहाँ बैठा हूँ तो फिर अब डर लगता है कि पसंद आएगा कोमल जी सबको कि नहीं. बट आई थिंक दैट इज एज पार्ट ऑफ एवरी फिल्म मेकर जर्नी. बट नो, आई वेंट. अनुपम सर, मेरा आपसे सवाल है. ये पोस्टर हम साथ साथ है का पोस्टर से थोड़ा रिलेट हो रहा है, तो उसकी क्या याद है और क्या बताना चाहेंगे? मेरी याददाश्त उस मामले में कमज़ोर है क्योंकि मैं उस फिल्म में नहीं था. तो मेरे लिए तो पहला पोस्टर है. नहीं, मैं थैंक यू फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन. आई थिंक मैं वो सिमिलैरिटी नहीं देखता. सिमिलैरिटी अच्छाई की है, उनकी जो हर फिल्म में उनकी झलकती है. सिमिलैरिटी गुडनेस की है, सिमिलैरिटी फैमिली की है, मोहब्बत की है, मोहब्बत की ऊंचाइयों को छूने की है. मगर इस फिल्म का एक्सपीरियंस जो है, पहला महीना जो हमने नेपाल में, और ये बताना बहुत ज़रूरी है कि हम उस पूरी जगह गए हैं जहाँ पर जो आपको फिल्म में नज़र आ रही है. तो ऐसा नहीं है कि हमने सारे पोर्शन जो हैं वो ग्रीन स्क्रीन के अगेंस्ट किए हैं. मैं अमित जी तबीयत की वजह से, मगर मैं और बमन और हमारे 100 लोगों की टीम, हम सब लोग गए थे वहाँ पर. और वहाँ पर भी जाने का एक अलग ही एक एक्सपीरियंस था हमारा, क्योंकि वहाँ ऐसे कोई 5 स्टार होटल्स नहीं थे, कोई ऐसी इंतज़ाम नहीं थे. आई एम पेट्रीफाइड ऑफ फ्लाइंग. मैंने लाइफ में कभी 1.5 घंटे का हेलीकॉप्टर फ्लाइट की ही नहीं है. कन्विक्शन की बात कर रहे हैं ना, ये मेरी कन्विक्शन है जी. मैंने सूरज जी के लिए 1.5 घंटा हिमालय में हेलीकॉप्टर से चला हूँ मैं. जो मुझे परसों अगर फ्लाइट लेनी होती है, मुझे आज घबराहट शुरू हो जाती है. और सूरज जी ने पायलट को समझा के रखा था, यू नो द काइंड ऑफ कंसर्न दैट ही हैज़ फ्रॉम पीपल. तो पायलट ने मुझे बैठा के चाय पिलाई और बोला कुछ नहीं होता है, ऐसा होता है. 1 घंटा मैंने कहा लेक्चर क्यों दे रहा, जहाज क्यों नहीं चला रहा. बाद में पता लगा सूरज जी ने बोल दिया था कि इनको नर्वसनेस होती है. दैट होल वी वर स्मॉल लिटिल होटल, द फ्रेंडशिप दैट वो होटल था नहीं था. हाँ, मतलब ऐसा था कि मैं वहाँ पर ठंडा पानी आता था, गर्म पानी नहीं आता था, सड़कें नहीं थी, तो मतलब पैदल जाना पड़ता था. सो दैट इज़ द कन्विक्शन दैट इट हैपेंस. मतलब एक बार तो मैंने टावल, पानी ठंडा आया, मैंने टावल मंगवाया, तो मुझे नहीं पता उस टावल का रंग नीला था. जब मैंने नहा के बाहर आया पूजा करने के लिए, मैंने शीशे में देखा, मेरा पूरा चेहरा नीला था, पूरा शरीर नीला था. तो आई थिंक द फ्रेंडशिप दैट ऑल्सो ग्रू बिटवीन मी एंड बमन ड्यूरिंग द फिल्म, the shooting of this film, is we thought we were very friends, but now we went ahead with that. So conviction to not because of I'm answering your question, I'm just saying that his belief makes you believe in life, makes you believe in goodness, makes you believe in kindness. किरण ने बड़ा अच्छा बोला, ये बंदा है या बुद्धा है. आई थिंक इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट और कोई किसी को आजकल के दौर में कौन दे सकता है. अनुपम सर, योर लेफ्ट. हाँ जी, हाँ, यस सर. राहुल हियर फ्रॉम द फिल्मी चर्चा. सबसे पहले तो पूरी टीम को दोस्ती की ऊंचाई के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं. मेरा कॉमन क्वेश्चन है सारे स्टार कास्ट से, नीना मैम से, सारिका मैम से, बोमन सर से. सर, इस फिल्म में बहुत कुछ आपने रिलेट किया होगा खुद से. कोई ऐसा मोमेंट, कोई ऐसा पल था जो आपने पहली बार किया और रियल लाइफ में वो मोमेंट आप लाना चाहते हैं? सब अपने अपने शेयर करें. उससे पहले आप मीडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस. आप लोगों को ट्रेलर कैसा लगा? ताली मार के दिखाओ. बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यू आर द पीपल हु विल टेक इट टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. हम कितनी अपनी मेहनत की बात कर लें, हम कितनी ऊंचाइयों की बात कर लें, कितने पहाड़ों की बात कर लें, लेकिन आप लोग जो हैं आज इस ट्रेलर को दुनिया तक ले जाएंगे.
हम फॉरेन, सॉरी मैं बाकी लोगों के बिहाफ पे बोल रहा हूँ, हम फॉरेन कंट्री जाते हैं और कहते हैं कि हम इटालियन खाना खा रहे हैं, कहते हैं नहीं यार अब वो हिंदुस्तानी खाना खाना का दिल कर रहा है, उसके बगैर मज़ा नहीं आएगा। तो सूरज की और राजश्री फिल्म की फिल्में वो हिंदुस्तानी खाना है जिसका बार बार खाने का दिल करता है। सर आंसर पे आ जाते हैं सर थोड़ा। अरे हटो, क्यों दूं मैं तुम्हारे सवाल का आंसर? क्या सवाल था, भूल ही गया। सवाल ये था सर, ये फिल्म में ये आपने ट्रेलर में दिखा सर, बहुत सारे पल ऐसे होंगे, कॉमन क्वेश्चन है आप सभी स्टार कास्ट से ले, बहुत ऐसा पल मोमेंट्स होंगे जहाँ कुछ आपने खुद से रिलेट किया होगा रियल लाइफ से। कोई ऐसा पल जो आपने पहले रिलेट नहीं किया कभी और वो दोबारा रियल लाइफ में उस मोमेंट्स को लाना चाहते हैं अपने? I think I have not cried so much in the making of the film as much I have cried as a person. Even today, watching trailer also. Watching trailer also we cried. Listening to Kamal Babu, listening to everybody else, I think was very moment. मैं 67 years का हूँ और मेरा ये मानना है कि ये कुछ भी नहीं है। अभी तो मैंने ज़िंदगी की शुरुआत की है। इस फिल्म ने मुझे उस विश्वास को और विश्वास से जीने का मौका दिया है कि 65 इज़ नथिंग। हम अपने आप को और ख़ासकर बच्चे जो हैं अपने माँ बाप को बूढ़ा करार दे देते हैं, उनके लिए आसान होता है। वो बच्चे जो हैं अपने माँ बाप को बोलते हैं अब आप साइड पे बैठ जाओ, नहीं आपसे नहीं होगा। अरे वो रिश्ते में आपके बाप हैं, उनसे सब कुछ होगा। तो ये मेरा जो बिलीफ है वो मेरा इस पर और यकीन कायम हो गया। बमन सर आप कौन सा पल जीना चाहते हैं? पहले तो स्क्रीन पे रोना बहुत मुश्किल होता है एक्टिंग करते वक्त, लेकिन इट वाज सो इजी टू गेट इमोशनल इन द मोमेंट्स इन दिस फिल्म। देयर इज सो मच ट्रूथ इन द वे दिस जेंटलमैन वुड सेट अप द सीन की एक्सप्लेनेशन जो है, जस्ट एक मूड। एंड एनी टाइम वी हैड टू डू अ रीटेक और समथिंग, आई वुड जस्ट वेव आउट टू हिम, ही वुड कम रनिंग, ही वुड हग मी, ही वुड किस मी, and he would mention, we have a private line of what he'd say something to me, and the tears would come. Glycerin companies barbad ho jayenge. I tell you, there's so much of truth in this film, and he brought that. He's the simplest human being I know, and he can sit and he's a prince, but he talks to us like he's grateful to you for just being on his set. What kind of a man is he? You don't get emotional just thinking about it. So emotionally, it was huge for me being with these wonderful people, Bachchan Saab. And I'm the youngest member of this family, actually. Sorry. I'm sorry. Yeah. And just one last thing. Suraj ji, na, if you do a good shot, or he had, इनका एक typical एक तरीका होता है, he'll do like this, good shot, and he'll jump. आप और मैं दोनों करके दिखाते हैं। नहीं, हम चारों करके दिखाते हैं। You have to see this. सूरज जी को जब शॉट अच्छा लगता था, बल्कि ये हो गया था, वो आप भी उठे ना? हाँ नहीं, जी, नहीं। हाँ। सूरज जी को शॉट अच्छा लगा, 1 2 3, और इसके बाद अगर शॉट so much so कि जब ये ऐसा नहीं करते थे, एक दिन अमित जी ने इनसे कहा मगर आपने वो तो किया नहीं मेरे लिए। और अगर शॉट पसंद नहीं आया तो ये कहेंगे आउट ऑफ फोकस है, एक और नीना मैम आप भी बताइए, सारिका मैम आप भी। क्या बताऊं? यही चीज, कौन सा पल आपने खुद से रिलेट किया और कौन सा पल जीना चाहते? मैं चाहती हूँ, हाँ मैं बोल रही हूँ, मैं चाहती हूँ मैं बड़ी होके सूरज जी जैसी बनूं। हेलो सूरज जी। मुझे लगता है जो चीज मुझे एकदम ठीक से समझ नहीं आया कि मैं क्या बताऊं, लेकिन आई थिंक व्हाट यू आर ट्राइंग टू आस्क उस हिसाब से जो दोस्ती का जो एक है, जो हम सब जानते हैं दोस्त हमारी ज़िंदगी में कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं, और मैं बहुत वैल्यू करती हूँ मेरे लाइफ में जो फ्रेंड्स हैं। मगर जब हम फिल्म कर रहे थे ऐसा कोई सरप्राइज़ नहीं था या कोई बहुत बड़ी ड्रामेटिक चीज़ नहीं थी, बट द होल प्रोसेस ऑफ मेकिंग द फिल्म यू रियलाइज friendship is so beautiful and you have to go and cross all limits to do that. I think that part of it जो था वो बहुत मुझे दिल को लगा। बट मैं इसमें कहना चाहूँगा, ये तो
सबने बहुत तारीफ, मैं इतना अच्छा हूँ नहीं, बट मेरे लिए बहुत आसान होती है ये सब एक्लॉट लेना, बिकॉज ये डायरेक्ट कुछ करने की ज़रूरत है नहीं. हम लोग एक दिन कैलकुलेट कर रहे थे नीना मैम, 350 years of experience will be calculated amongst all the cast of this film, और मेरा भी ऐड, right from बच्चन सर का 53, 50, डैनी सर का 50, 38, 21, नीना मैम 25. Experience not of life, experience of life, of work. acting करने. शब्बो एक्सपीरियंस की तजुर्बे की बात कर. So total experience of 350 years of experience. 350. So उसमें डायरेक्टर तारीफ ही लेगा और क्या करे, करना तो कुछ. और ऐसा अच्छा नहीं कि सूरज सिर्फ मेन कास्ट को बताते थे. पहाड़ पे एक लाइटमैन खड़ा है और वो कर रहा है, ये जाएंगे बेटा, कहाँ सीन ये चल रहा है कि इसमें यहाँ पर ये जो है पूरा, उसको 5 मिनट तक समझाएंगे. वो कह रहा मैं लाइट देनी है मुझे. बट let's just take it today's example. When you go from here today, you will feel goodness, you will feel life, you will feel happiness. That is the film all about. हर शख्स को सेट पे मैं एक चीज कहना चाहता हूँ. हर शख्स को बोलते वेरी गुड शॉट, शॉट ओके, शॉट ओके, अमित जी शॉट ओके, ओमन जी शॉट ओके, अनुपम शॉट ओके. अच्छा फॉग दे रहा था, फॉग मशीन वाला, बेटा बहुत अच्छा फॉग दिया, शॉट ओके. देखिए वो तो काम है, 100% काम तो बोलता कि कहीं भी चढ़ना है, मगर उसको चढ़ने में उतना मजा आएगा कि नहीं वो सोच सकता है. किसी को बोला अरे यार ये पहाड़ पे चढ़ने को बोल रही है जो भी, मतलब. बट इनके साथ so work makes you do lots of things, so that we can't say that. Yeah. But of course for him it was always a joy. To have a shower with the cold water in -3, it was a joy. To find out food and to play word building, to play dumb charades, it was a joy. To be able to stand on the same set as Mr. Bachchan, it was a joy. Pariniti jaisi, jo aaj yahan nahi hai, we must say things about her. It was a joy to be working with her. It was joy. Everything was but this joy will hopefully translate in the audience, because so that we can keep on making films like this. So that we can, sorry, go ahead. हेलो नहीं बस इतना ही बोलना. सूरज जी यहाँ आप towards your right. This is Ravi Jain from ABP News Channel. सूरज जी 2003 में आपकी फिल्म आई थी मैं प्रेम की दीवानी हूँ. एक मॉडर्न सेटिंग दी थी आपने, फैमिली फिल्म थी लेकिन मॉडर्न सेटिंग दी थी. ये फिल्म जो है पारिवारिक उस तरह से नहीं है जिस तरह की फिल्में राजश्री बनाता आया है, और जिस तरह से आप इतने सालों से मैंने प्यार किया से लेकर अब तक जितनी भी फिल्में बनाई हैं पारिवारिक फिल्में बनाई हैं. मेरा सवाल ये था कि कितना टेम्पटिंग आपके लिए होता है कि पारिवारिक फिल्मों से हटकर भी आप दूसरी फिल्में, दूसरे सब्जेक्ट पे फिल्में बनाएं, और उस टेम्पटेशन को आप अब तक क्यों रोकते आए हैं कि पारिवारिक फिल्मों से हटकर भी आप कुछ बनाएं? उस टेम्पटेशन के बारे में बताइए, या आपको वो रिस्क लगता है कि पारिवारिक फिल्मों से हटकर फिल्में बनाना, क्योंकि 35 सालों में आपने बहुत ही कम एक्सपेरिमेंट किए हैं एक फिल्म मेकर के तौर पर, और ऊंचाई उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल नज़र आ रहा है कि जब आप उसके बाहर आके सोचते हैं तो कुछ नया नज़र आता है, कुछ अलग भी नज़र आता है. क्या कहना चाहेंगे इस बारे में सर? एक्चुअली पहले तो निकल ही नहीं पाता मैं परिवार से, कहीं ना मैं फंस, इसमें भी फंसा हूँ. देखिए पोस्टर भी अभी मुझे पता चला रहे हम साथ साथ है, तो सीधा 99 में चला गया मैं. तो ये भी पारिवारिक फिल्म ही है, राष्ट्रीय फिल्म ही है. सिर्फ इसका जो सब्जेक्ट है वो एक अलग पहलू का परिवार है. इस पे फ्रेंडशिप का परिवार है, इसमें अपने आप के चैलेंजेस का, क्योंकि हर परिवार ज़रूरी नहीं कि जॉइंट फैमिली ही परिवार हो, परिवार दूर रहकर भी परिवार के दिल मिलने चाहिए. और एक इस फिल्म के थीम के बारे में बोलना चाहूँगा कि मेरे फादर के रूम में एक कैप्शन लगाते थे वो कि इफ़ आई कैन रन आई विल रन, इफ़ आई कैन वॉक आई विल वॉक, इफ़ आई कैन क्रॉल आई विल क्रॉल, बट आई विल मूव फॉरवर्ड. सो ये कैप्शन मेरे दिमाग से गया नहीं, क्योंकि हम जैसे अनुपम सर ने कहा, मैंने भी अपने फादर को कई बार बोला अब रहने दो. तो आज मुझे लगता है कि किस बेसिस पे, तो आज जब मैं 58 का हूँ, तो मैं जब ये झलक देखता हूँ ये एज ग्रुप का, तो मुझे इसमें अपना फ्यूचर नज़र आता है. तो मैं चाहता हूँ, मैंने तो इसलिए राष्ट्रीय फिल्म है. हाँ,
मैं प्रेम की दीवानी हूँ 2003 में बनाई। वो एक मेरी ऐसी फिल्म थी जो मैंने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि वो एक ऐसी फिल्म थी जिसमें मैंने दूसरों से पूछा कि ये चलेगा या ये अच्छा लगेगा कि नहीं, जो करेक्ट नहीं है फॉर अ डायरेक्टर। आई मस्ट गो विथ व्हाट आई एम। सो कन्विक्शन। सो आई थिंक, एंड एट दिस स्टेज ऑफ माई लाइफ नंबर्स डोंट अपील टू मी, बीइंग फर्स्ट डजंट अपील टू मी। आई जस्ट वांट कि कुछ छोड़ के जाए, बिकॉज इट्स सो इम्पॉर्टेंट दैट